students, how are you? I hope you all are well at home. So let's start today's topic. Today our topic is again air and water. Students, in this video we will discuss about water. In previous video we have discussed about air. In this video we will discuss about water. All plants and animals need water to live. सभी प्लांट्स और एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की. They want water to live. We use water for drinking. It means we use water for different uses. Like different uses of water are, we use water for drinking, we use water for cooking, we use water for washing clothes, we use water for bathing, we use water for cleaning, etc. These are the different uses of water. ये different uses of water हैं जिससे जिन कामों के लिए कि हम water को यूज में लेते हैं. The water that we use mainly comes from rivers, ponds, lakes and wells. और वो water जिसको कि हम काम में लेते हैं वो कहाँ से आता है? It comes from rivers, lakes, ponds and wells. इन different source से ये water हमारे पास आता है जिसको कि हम daily life में काम में लेते हैं. This water contains dirt, sand, mud and germs that make it unfit for drinking. जो कि इस वाटर में क्या क्या होती हैं? डर्ट होते हैं, सैंड होता है, जर्म्स होते हैं, मड होता है जो कि इसको हमारे यूज के लिए अनफिट बना देता है. The substances that make water dirty or unfit for use are called impurities. What are impurities? The substances that make water dirty or unfit for use are called impurities. वो substances जो कि पानी को पीने योग्य या यूज लेने योग्य नहीं रहने देते हैं, जो कि उसको इनके लिए अनफिट कर देते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? impurities. We call them impurities. There are two types of impurities: soluble impurities and insoluble impurities. Soluble and insoluble. यहाँ पे दो टाइप्स की impurities होती हैं. Soluble means that can mix with water and insoluble means that cannot mix in water, जो कि पानी के साथ mix नहीं होती हैं. Soluble जो कि पानी के साथ mix हो जाती हैं. We can remove these impurities. We can remove these impurities by using different methods. इन impurities को हम क्या कर सकते हैं? Remove कर सकते हैं to make fit water for use. Water को fit use के लिए fit बनाने के लिए हम इनको क्या कर सकते हैं? Remove कर सकते हैं. We use different methods to remove them. उनको remove करने के लिए हम क्या करते हैं? Different types of methods हम use में लेते हैं. Methods of removing insoluble impurities. Insoluble impurities के लिए हम कौन कौन से methods अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. Methods of removing insoluble impurities are sedimentation, decantation and filtration. It means these methods we use to remove insoluble impurities. Insoluble impurities को remove करने के लिए हम ये 3 methods अप्लाई करते हैं, यूज में लेते हैं: sedimentation, decantation and filtration. What is sedimentation and decantation and filtration? क्या है? Water with insoluble impurities allowed to stand undisturbed. जो भी पानी क्या होता है?
जिसमें कि इम्प्योरिटीज हैं, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं के साथ जो भी पानी है उसको अनडिस्टर्ब्ड स्टैंड करवाया जाता है, उसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड उसको छोड़ दिया जाता है। इट मीन्स इन सेडिमेंटेशन we take impure water in a container, then we leave it for some time undisturbed, हम इसको कुछ टाइम के लिए undisturbed छोड़ देते हैं। after some time impurities settle down, after some time impurities settle down in the bottom of the container, कुछ समय के बाद में क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज थी वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं, बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट, व्हाट वी कॉल देम सेडिमेंट। इट मींस इन दिस मेथड water with insoluble impurities is allowed to stand undisturbed, इसमें पानी को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड हम क्या करते हैं, स्टैंड कराते हैं, उसको छोड़ते हैं। After some time insoluble impurities are settled down at the bottom, कुछ समय के बाद में जो भी impurities हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं, जो कि कंटेनर के बॉटम में क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। These impurities are known as sediments, और इन impurities को हम क्या कहते हैं, sediment, what we call them sediments। This process is known as sedimentation, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, sedimentation, इस प्रोसेस को हम sedimentation कहते हैं। Then after some time, after that this water can be separated, this clean water can be poured in another container, और इसके बाद में ये वाटर किसी दूसरे कंटेनर में क्या किया जा सकता है, पोर्ड किया जा सकता है, इसको अदर कंटेनर में स्टोर किया जा सकता है। इन दिस प्रोसेस क्लीन वाटर कैन बी स्लोली पोर्ड आउट इनटू अ सेपरेट कंटेनर, दिस विदाउट डिस्टर्बिंग इट, इसको बिगर डिस्टर्ब किए दूसरी कंटेनर में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। वंस अगेन, आफ्टर सेडिमेंटेशन द क्लीन वाटर कैन बी स्लोली poured, the clean water can be slowly poured in another container, in another separate container. This process is known as decantation. Then filtration, in this process liquid is passed through a filter paper, in this process liquid is passed through a filter paper, a mixture of sand and water can be filtered, और इसमें सैंड और मड का जो मिक्सचर है that can be filtered by a filter paper, जो कि इसको सेपरेट किया जा सकता है by a filter paper. The filter paper is folded twice to make a cone, और इसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को 2 टाइम क्या करते हैं, हम इसको फोल्ड करते हैं टू मेक ए कॉन बनाने के लिए। दिस कॉन इज केप्ट इनसाइड ए फनल, और इसमें ये फिर उसके बाद में ये कॉन इस फनल के अंदर क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। द फनल इज केप्ट ऑन द कॉनिकल फ्लास्क, और फिर वो फनल कॉनिकल फ्लास्क पे क्या किया जाता है, इसमें सेट किया जाता है। एंड इम्प्योर वाटर कंटेनिंग सैंड मड, impure water containing sand and mud is poured into the funnel, और फिर उसके बाद में जो impure water हमने लिया था मड और सैंड के साथ में, उसको फनल में डाला जाता है।
द वाटर सिप्स थ्रू द फिल्टर पेपर, और वाटर फिल्टर पेपर से क्या करता है, सिप करता है टू डाउनवर्ड, डाउन साइड में, एंड कलेक्ट्स इन द फ्लास्क, और फ्लास्क में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है. impurities like sand impurities like sand mud are left on the filter paper, और impurities क्या हो जाती है इस मेथड में, फिल्टर पेपर पर क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती हैं. दिस वे वी कैन make clear it, we can make water fit for use. This water is fit for use. This is clear water. Then next, removing soluble methods of removing soluble impurities are evaporation and distillation. What is evaporation? It is the process in which water is changes into water vapor on heating. ये वो प्रोसेस है जिसमें कि वाटर ही चेंजेस इनटू वाटर वेपर, वाटर वेपर में चेंज किया जाता है ऑन हीटिंग, उसको हीट करके गर्म करके. इन दिस प्रोसेस वी टेक impure water into container and then we boil it. When we boil it, water evaporates into water vapor and impurities left behind into container. By this process we can separate insoluble impurities from water. Then next is distillation. In this process, impure water is heated in a round shaped flask. In this process, water is heated into round shaped flask till it start boiling. जब तक कि ये बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, जब तक एक राउंड शेप फ्लास्क में वाटर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है. ऑन बॉइलिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, और जब हम इसको बॉइल करते हैं तो वाटर इज चेंज इनटू स्टीम, वाटर स्टीम में चेंज होने लगता है. एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, और इम्प्योरिटीज पीछे रह जाती हैं. इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉटम ऑफ फ्लास्क, फ्लास्क के बॉटम में रह जाती हैं. द स्टीम passes through the कंडेंसर, और फिर उसके बाद में स्टीम कहां से पास की जाती है, थ्रू द कंडेंसर, विच इज केप्ट कूल बाय द कोल्ड वाटर, जो कि कोल्ड वाटर से कूल रखा जाता है. बाय इट इज केप्ट कूल्ड बाय कोल्ड वाटर पासिंग थ्रू इट, सर्कुलेटिंग थ्रू इट. इसमें से कोल्ड वाटर पास करके, सर्कुलेट करके इसको क्या किया जाता है, ठंडा रखा जाता है. इन द कंडेंसर द स्टीम चेंजेस इनटू वाटर, और इस कंडेंसर में क्या होता है, स्टीम किस में चेंज होती है, इनटू वाटर. अगेन दिस वाटर कलेक्ट्स इनटू अनदर सेपरेट कंटेनर, और फिर इसके बाद में ये चेंज्ड वाटर इसमें अनदर कंटेनर में क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है. दिस वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. और जो फिर उसके बाद में जो ये वाटर होता है जिसको हम सेपरेट करते हैं, ये प्योरेस्ट वाटर होता है. दिस वे वी कैन सेपरेट soluble impurities from water. In cities and towns, water from lakes or rivers is purified in big purification plants and then supplied to homes. Cities और towns में क्या होता है, वाटर जो कि रिवर और लेक और पॉन्ड से लिया जाता है, उसको बड़े बड़े प्लांट्स में क्या किया जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है. देन इट इज सप्लाइड टू होम, फिर वो घरों में सप्लाई किया जाता है. फॉर दैट दे फॉलो
ए सिस्टम, और उसके लिए वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दे कलेक्ट वाटर इनटू बिग वाटर टैंक्स. उसके लिए सबसे पहले वो रिवर और पॉन्ड से मिलने वाले वाटर को क्या करते हैं, बड़े बड़े टैंक्स में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. देन इट इज लेफ्ट फॉर सम टाइम फॉर सेडिमेंटेशन, और फिर उसके बाद में इसको कुछ टाइम के लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है. आफ्टर सेडिमेंटेशन प्रोसेस इट इज फिल्टर्ड. फिर उसके बाद में सेडिमेंटेशन के बाद में क्या किया जाता है, इट इज फिल्टर्ड बाय पासिंग थ्रू द फिल्टर पेपर्स. फिल्टर पेपर से पास करके क्या किया जाता है, इसको फिल्टर्ड किया जाता है. आफ्टर फिल्ट्रेशन it is collected in a tank and chlorine gas is passes through it. और इसके बाद में बड़े टैंक्स में कलेक्ट करके इससे क्लोरीन पास की जाती है टू किल जर्म्स किल करने के लिए. देन दिस वाटर इज कलेक्टेड इन बिग टैंक्स, और उसके बाद में ये बड़े टैंक्स में क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है. आफ्टर दैट इट इज सप्लाइड टू होम्स, और उसके बाद में ये घरों में सप्लाई किया जाता है. अदर मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं जिनको कि हम ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए काम में लिए जाते हैं. दीज आर बॉइलिंग. इट इज द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर. बॉइलिंग क्या है, एक सिंपलेस्ट वे है ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने का. बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन इट. और यदि हम 8 to 10 मिनट्स इसको बॉइल करते हैं तो ये बॉइलिंग क्या कर देता है, जो भी जर्म्स उसके अंदर वाटर के अंदर होते हैं उनको किल कर देता है. Boiled water may be filtered through a clean piece of cloth and stored in clean and covered containers. और उसके बाद this boiled water can be filtered by passing through a cloth. एक कपड़े से इसको फिल्टर करके इसको साफ किया जा सकता है. and then it can stored in container to drink. और उसके बाद में इसको एक कंटेनर में क्या कर सकते हैं, हम इसको स्टोर कर सकते हैं टू ड्रिंक. नाउ इट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. अब उसके बाद में ये है ड्रिंकिंग के लिए क्या होता है, सेफ होता है. अनदर मेथड क्लोरीनेशन. द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू वाटर फॉर प्योरीफाइंग इट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन. ये एक मेथड है जिसमें क्या करते हैं, हम पानी के अंदर कलेक्टेड वाटर के अंदर हम क्लोरीन गैस पास करते हैं टू किल जर्म्स किल करने के लिए. क्लोरीन टैबलेट्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. और मार्केट में क्लोरीन टैबलेट्स इजीली अवेलेबल होती हैं. क्लोरीन किल्स द जर्म्स इन वाटर एंड मेक्स इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. क्लोरीन क्या करता है, वाटर के अंदर जर्म्स को किल कर देता है और उसको ड्रिंकिंग के लिए फिट बना देता है. नाउ दिस वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. अब उसके बाद में क्लोरीनेशन के बाद में वो वाटर क्या होता है, ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है. वाटर फिल्ट्रेशन. वाटर फिल्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू प्योरीफाई वाटर एट होम. इसके अलावा वाटर फिल्टर भी हम क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं टू प्योरीफाई वाटर एट होम. घर पर वाटर को प्योरीफाई करने के लिए. दिस वे our topic is completed. Maybe you understand it. Thank you. Have a nice day.